Since now we are going to cover the practical, that is qualitative analysis. From qualitative analysis point of view, if you will look into your manual, manual may, when we are starting qualitative analysis, in our last practical, we have seen all the concepts related to qualitative analysis, right? Yes or no? क्वालिटेटिव में क्या क्या करते हैं सबको पता है? Yes or no? What is the sequence of the reactions? Yes. सीक्वेंस क्या है? Don't know what has happened. Yes, Gaikwad Akanksha. Akanksha Gaikwad. Akanksha, reply fast. Akanksha. I'm going to mark you absent today. Gaikwad Akanksha. Next. Amisha Patel. Patel Amisha. Amisha Patel. I am audible, no? Hello? Yes, ma'am. Yes, Amisha. Yes, Amisha. पहला स्टेप क्या है प्रिलिमिनरी का? What is the first step? Write the answer in the chat box if any issue is there. First step of preliminary, yes. Hello. Yes, ma'am. What is the very first step of preliminary? Yes. Halima Ansari. Halima Ansari. Yes, ma'am. Yes. What is the very first step of preliminary? Physical concept. First step of preliminary.
Hello, ma'am. The screen is हाँ not visible. क्या? The screen is not visible. हेलो, Hello, ma'am. The screen is not visible. मैनुअल नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है मैम, दिख रहा है मैम। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप of preliminary? Checking the color. Yes, very correct. The very first step is about the organoleptic properties. जैसे कि उसका कलर हो गया, ओके, ओडर हो गया, then we come to the nature of that compound. तो कलर में, फॉर एग्जाम्पल, नाउ टुडे वी विल टेक वन सैंपल. हम लोग एक सैंपल लेंगे, ओके. वो सैंपल मतलब अभी 10 सैंपल्स यू आर सपोज टू परफॉर्म, ओके. वो आपके मैनुअल में दिए हुए हैं. वो सैंपल्स कौन से हैं? वो सैंपल्स का लिस्ट अगर तुम मैनुअल में देखोगे, आपके मैनुअल में क्वालिटेटिव के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सैंपल का लिस्ट है, ओके. इंडेक्स के बाद इफ यू विल सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ सैंपल्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू टेक फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो वेरी फर्स्ट इज ईदर बेंजोइक एसिड, सक्सिनिक एसिड और सिनामिक एसिड. तो हम लोग लेने वाले हैं आज बेंजोइक एसिड, ओके. सो आज के सैंपल का नाम है बेंजोइक एसिड. क्या नाम है आज के सैंपल का? Benzoic acid. बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड में जब हम लोग देखते हैं what is the structure of benzoic acid, as you all know it is very simple. Benzene ring and COOH connected to the para position. Yes, so this is nothing but benzoic acid, okay. All of you draw the structure of benzoic acid and put it in the chat box. Draw the structure of benzoic acid and put it in the chat box. ड्रॉ किया स्ट्रक्चर? सॉरी, Hello. yes, Ma'am, your voice. I'm waiting for the fix. Okay, Prakash, Shrutika,
Dhairya, only 3 of them they have drawn and they have put it in the chat box. Others? Hello, ma'am. I don't have chat box. So you can post it in the channel. Yes, Shreya Patil. Yes, means many of you can draw the structure of benzoic acid or you know at least कि what is benzoic acid. तो इसमें तुम लोगों को आज का ये जो सैंपल दिया है, if you will look into the test, no, the very first test for color, if you will go, the color of benzoic acid. Okay, so I will show you one pic of benzoic acid. उसमें से वो पिक्चर देख के आपको मुझे बताना है कि बेंजोइक एसिड का कलर क्या है. आई विल Yes. Can you see the pic of benzoic acid which I have sent? Yes. पिक दिसतंय का सगळ्यांना बेंझोइक ऍसिडचं? No, ma'am. पोस्ट में डाला है ना? Yes, ma'am. Visible. Ma'am, I have sent it on your wall. Yes. Visible, ma'am. कोणी काही बोलत होतं का मगाशी? Yes, ma'am. I have sent you on WhatsApp. Benzoic acid. Okay. Ma'am, it is crystalline solid. Yes. So it is, what is the color of that powder? White. It is solid. Okay, solid and it is white. So in nature, Right. चार्ट में अगर तुम लोग पहले देखते हो, ओके, मैनुअल में नेचर नहीं दिया हुआ है. मैनुअल में तुम लोगों को सी यहाँ पे कलर के नीचे लिखना है नेचर. कलर में ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? What observation you will White. write down? White. Yes. White. Yes. White और कलरलेस. ओके, अभी चार्ट में देखो कलरलेस के सामने इन्फ्लुएंस क्या है? Simple acid, alcohol, ester, ketone, aromatic hydrocarbon. Yes. So now when I am dictating, now
you will write down only observations. Inference बाद में लिख सकते हो आप चार्ट में से देख के. ओके, कलर के सामने ऑब्जर्वेशन लिख लो व्हाइट कलरलेस, और उसका जो इन्फ्रेंस है दैट यू विल राइट इट डाउन लेटर इन द इन्फ्रेंस. ओके, मतलब अगर कलरलेस सैंपल है तो ये एसिड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ईस्टर भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है. नाउ इफ यू विल गो फॉर नेचर, नेचर क्या है इसका? कलरलेस स्लैश व्हाइट आएगा ना, कलरलेस स्लैश व्हाइट. यस, व्हाइट या फिर कलरलेस एक ही होता है, मतलब यू कैन राइट बोथ. ओके मैम. नेचर क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है? सॉलिड मैम. यस, तो सॉलिड के सामने ऑब्जर्वेशन में सॉरी नेचर के सामने ऑब्जर्वेशन में लिखना है सॉलिड, एंड इसका इन्फ्रेंस लेटर ऑन यू कैन राइट इट डाउन. ओके, मतलब ये भी एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, हायर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, अमाइन हो सकता है, एनीथिंग. ओडर, अभी ओडर, इसका ओडर तो आप अभी ले नहीं सकते, बट आइडियली बेंजोइक एसिड को ऐसा कुछ ओडर तो होता नहीं है. इट डोंट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर. सो अभी ऑब्जर्वेशन में देखो कहाँ पे है, नो पर्टिकुलर स्मेल. नो पर्टिकुलर स्मेल, एरोमेटिक एसिड, अमाइन कार्बोहाइड्रेट. यस, सो ओडर के सामने ऑब्जर्वेशन में आएगा नो पर्टिकुलर स्मेल, and that respective inference you will write down. Okay, now if you will see for solubility of benzoic acid, okay, तो बेंजोइक एसिड का solubility जब हम लोग बात करते हैं तो अभी ये भी पॉसिबल नहीं है, since you people are online, मतलब हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिकल ले रहे हैं, तो now it is not possible to determine the solubility in lab. ओके, तो इसके लिए जैसे कि सोल्यूबिलिटी का डेमो तुम लोगों ने देखा था, हैव यू सीन द डेमो ऑफ प्रिलिमिनरी? उसमें सोल्यूबिलिटी का डेमो देखा है? यस मैम, देखा है. तो सोल्यूबिलिटी क्या है, पहला कंसेप्ट क्या है सोल्यूबिलिटी का? जब हम लोग सोल्यूबिलिटी करने जाते हैं तो पहले हम लोग सोल्यूबिलिटी किस में चेक करते हैं? वाटर में. वाटर. यस, अगर ये वाटर सोल्यूबल है तो ये पर्टिकुलर इन्फ्रेंस हम लोग लिख के यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और आगे हम लोग वो जो सोल्यूशन मिला, मतलब जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हुआ, उसका लिटमस टेस्ट करते हैं. तो लिटमस टेस्ट में अभी ये एसिड है. ओके, बेंजोइक एसिड है, तो ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? बेंजोइक एसिड तुम लोग एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के क्लासिफिकेशन में लिखते हो ना नाम, इजंट इट? डेफिनेटली ये एसिडिक है नेचर में, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. And Yes, ma'am. if you, yes, मैम इट इज अ वीक एसिड. yes. तो ये जो है इसका सोल्यूबिलिटी अगर तुम लोग देखते हो, बेंजोइक एसिड का सोल्यूबिलिटी, तो ये पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है. मोस्टली ये फॉल करता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. ओके, मतलब ये इजीली सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. ओके, तो ये सिंस इट इज मोर टुवर्ड्स पोलैरिटी, तो ये वाटर में भी सोल्यूबल है.
ओके मैम हम लोग के चार्ट में अलग है और मैनुअल में ये सब अलग अलग टेस्ट दिया है, तो कैसे करने का मैम, मीन्स लिखने का कैसे? सी अभी मैनुअल में अगर तुम लोग देख सकते हो तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी बिहेवियर। ओके, पहले तुम लोगों को क्या करना है, सैंपल लेना है 0.2 ml और 4 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड। मतलब अगर सैंपल सॉलिड है, जैसे कि मैंने डेमो में बोला, अगर सैंपल सॉलिड है तो थोड़ा सा स्पैचुला में सैंपल टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। अगर सैंपल लिक्विड है तो उसके कुछ ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, फिर उसमें वाटर डालते हैं उसको शेक करते हैं। अगर ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो नॉर्मल वाटर में, तो हम लोग इसको हीट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। और अगर ये हीट करने के बाद भी सोल्यूबलाइज नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि ये सैंपल वाटर में इनसोल्यूबल है। अभी बेंजोइक एसिड के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड when you take few few grams of benzoic acid, not few grams, even 0.1 gram, मतलब a pinch of benzoic acid टेस्ट ट्यूब में लेते हो, तो टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद वाटर डालने के बाद ये इजीली डिसॉल्व नहीं होता। बट जब तुम लोग इसको हीट करते हो तो ये सोल्यूबलाइज हो जाता है। मतलब पॉइंट नंबर 1 सी में, पॉइंट नंबर 1 में सोल्यूबिलिटी इन वाटर में ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, सब्सटेंस डिसॉल्व, और उसके सामने जो इन्फ्रेंस है वो इन्फ्रेंस वहां पे आएगा। क्या है, इट कैन बी एन अल्कोहल, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, ईस्टर, कीटोन और कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट क्या है, कोल्ड और हॉट सॉल्यूशन। अभी सोल्यूबिलिटी इन वाटर, कोल्ड और हॉट सॉल्यूशन में लिखना है सोल्यूबल एंड टेस्ट विथ लिटमस। अभी लिटमस टेस्ट में डेफिनेटली ये एसिड है, तो लिटमस टेस्ट में क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, ये कलर चेंज करेगा ब्लू टू रेड। ओके, ब्लू टू रेड, तो ये क्या हो गया, एसिडिक। ओके, फिर पॉइंट नंबर 3 तुम लोग देखोगे, इफ इट इज एसिडिक देन यू आर सपोज टू टेक अगेन थोड़ा सा सैंपल एंड यू आर सपोज टू टेक 10% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। इसमें तुम लोगों को चेक करना है। तो अभी सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों लेते हैं, अभी सब्सटेंस अगर वाटर में सोल्यूबल हो चुका है तो चार्ट में जो है NaOH और HCl, वो टेस्ट तुम लोग करोगे क्या, नहीं मैम, नहीं करोगे, क्यों, इनसॉल्युबल के लिए। ओके, क्योंकि इफ द सब्सटेंस इज इनसोल्यूबल then only that test applies for the sample. Okay, अभी if acidic है, yes, तो क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट में उसको डालना है। जैसे ही तुम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट में एसिडिक सब्सटेंस को मिक्स करते हो तो क्या होगा, क्या लगता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। हाँ, पर वो कैसे न्यूट्रलाइज होगा, वो एफरवेसेंस देगा ना, हाँ, एफरवेसेंस देगा और वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। यस और नो, सॉल्ट प्लस, यस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के सामने ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, एफरवेसेंस। ओके, एंड इन्फ्रेंस में क्या आएगा, एसिड। अगर ये बेस के साथ एफरवेसेंस दे रहा है तो डेफिनेटली ये एसिड है। ओके, ओके मैम। अभी
फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में डैश 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 आएगा, ऑब्जर्वेशन में भी डैश आएगा, इन्फ्रेंस में भी डैश आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू बेंजोइक एसिड आई एम टॉकिंग। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड वाटर में सोल्यूबलाइज हो चुका है। So Yes, if ma'am. it is not soluble in water, then only you are supposed to go for NaOH का solubility and HCl का solubility. तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश डैश, ऑब्जर्वेशन में डैश, इन्फ्रेंस में डैश। किया सब लोगों ने? साइमल्टेनियसली लिख लो। Yes, ma'am. किया। Yes. Then next thing we go for, अभी प्रिलिमिनरी का सीक्वेंस में हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक सॉल्युबिलिटी के बाद जाते हैं एक्शन ऑफ रिएजेंट। तो पॉइंट नंबर डी अगर तुम लोग देखते हो, इफ इट इज एक्शन ऑफ रिएजेंट आफ्टर सॉल्युबिलिटी, चार्ट में भी वही है, इट इज एक्शन ऑफ रिएजेंट। तो एक्शन ऑफ रिएजेंट स्टार्ट होता है कोल्ड NaOH से, फिर हॉट H2SO4 से, फिर Na2CO3 का टेस्ट है थर्ड वाला, फोर्थ वाला है एक्शन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। एक्शन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज बेयर्स टेस्ट। लिख लो, यस, BAYER बेयर्स टेस्ट लिख लो ब्रैकेट में। फिफ्थ वाला टेस्ट है ब्रोमीन वाटर, सिक्स्थ वाला टेस्ट है FeCl3, देन ई वाला जो है वो है बेल-स्टेन्स टेस्ट, मतलब कॉपर गॉस। फिर नेक्स्ट टेस्ट है ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करना, नेक्स्ट है क्लीन ग्लास रॉड पे हीट करना, नेक्स्ट है सोडा लाइम के साथ हीट करना। तो ये सारे टेस्ट क्या हो गए? ये सारे टेस्ट हो गए रिएजेंट के एक्शन। फिर एक्शन ऑफ रिएजेंट के बाद हम लोग आते हैं, अभी एक्शन ऑफ रिएजेंट में देखो, टेस्ट फॉर KMnO4, ओके, KMnO4, ब्रोमीन वाटर एंड FeCl3। तो KMnO4 ब्रोमीन वाटर ये टेस्ट किसके लिए है? KMnO4 ब्रोमीन वाटर को, मतलब 4 और 5 को ब्रैकेट करके साइड में लिख लो। KMnO4 और ब्रोमीन वाटर, यस यस, तो उसके बाजू में लिख लो, इट इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ unsaturation present in the compound. It determines unsaturation present in the compound. Okay, लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Then next, जब कॉपर गॉस का टेस्ट आता है, बेल-स्टेन्स टेस्ट, उसके नीचे लिख लो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हैलोजन। लिखो नीचे उसके, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हैलोजन। Wait a minute.
हेलो, Yes, ma'am. हाँ वो अपना कंपटीशन है ना, तो उसके रिगार्डिंग फोन आते हैं बीच बीच में, तो आई नीड टू पिक अप द कॉल्स. ओके, सो दैट वाज रिगार्डिंग ड्राइंग कंपटीशन. नाउ वी विल कंटिन्यू. नेक्स्ट टेस्ट वी कम टुवर्ड्स हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब के बाद क्लीन ग्लास रॉड. तो क्लीन ग्लास रॉड का जो टेस्ट है, दैट इज फॉर व्हाट पर्पस? For aromatic compounds. Yes. So उसके नीचे लिख लो, it is for determination of aromaticity or aliphaticity. Aromaticity or aliphaticity. Just a minute. Hello. Yes, ma'am. Yes. Yes. So now there can be questions. What can be the questions? The way today we written in synopsis. Synopsis में एक question था. Bayer's test and Bellston's test. तो Bayer's test Yes. का दूसरा नाम क्या है? KMNO4 test. Yes. फिर Bellston's test का दूसरा नाम क्या है? Copper gas test. Yes, correct. So this type of question can be asked in exam, or they may ask you name the test to determine the aromaticity or aliphaticity of the compound. So अगर option है तुम लोगों के पास, तो which one will be the correct answer? Heating on clean Ma'am, grass. aromatic wala. Yes, heating on a clean glass rod. Clean glass rod. Yes, suppose the question is like, name the test to determine or name the test to confirm the presence of halogen. So what will be the answer? Copper gas Heating test on and oxidized copper gas. Bellston's test. Yes, yes, copper gas or Bellston's test. Yes. If the question is, name the test to determine the unsaturation present in the compound, then what will be the answer? KMNO4 test, and Bayer's test, and action of bromine water. यस, वेरी करेक्ट. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैनुअल में ही मार्क करना है. जैसे कि मैंने बोला, लिखते वक्त तुम लोगों को उसके नीचे ही लिखना है. एंड when you will write it down 10 times, since you are supposed to perform 10 samples, तो ये तुम लोगों को by heart हो जाएगा. Okay, तो each experiment you are supposed to write down the same thing. Okay. Okay, ma'am. Okay, now the next thing, when we come towards the action of reagent, okay, reagent के action के तरफ जब हम लोग आते हैं, तो NaOH का action, cold NaOH, then hot NaOH. If you look into the chart, उन्होंने cold NaOH दिया है, hot NaOH दिया है, मैनुअल में hot NaOH नहीं है. Then मैनुअल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया है, जो कि चार्ट में नहीं है. आगे है नेक्स्ट पेज पे. ओके, फिर एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट दोनों में भी है. तो यहाँ तक ये जो टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, यहाँ तक जैसे कि मैंने तुम लोगों को डेमो वीडियो में दिखाया था. डेमो वीडियो में when we started with the action of reagent, तो जब हम लोग cold NaOH का टेस्ट करते हैं, तो there are two observations. Okay, there are two observations. तो अभी when we go for benzoic acid,
Not a single observation is applicable to benzoic acid. तो अगर ऐसा केस है तो वहां पे ऑब्जर्वेशन के केस में तुम लोग क्या लिखोगे? Now in case of action of cold NaOH, what you will write down? No particular observation and inference dash. क्या लिखोगे? No particular observation. Yes, no particular observation, and in inference you will write down dash. Now, when you come towards the next point, hot concentrated sulfuric acid. When you go for hot concentrated sulfuric acid, you can write down one observation, that is on number 3. What is the observation? No inference nor blackening, but pungent odor. Yes, correct. Okay, so write down that observation. तो जैसे कि तुम लोगों ने डेमो वीडियो में देखा था, अभी डेमो वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट था सोडियम कार्बोनेट. डू यू रिमेम्बर दैट टेस्ट फॉर सोडियम कार्बोनेट? Yes, ma'am. क्या था सोडियम कार्बोनेट की टेस्ट में? व्हाट वाज दैट? मैम 10% सोडियम कार्बोनेट लेने का और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने का थोड़ा. करेक्ट. तो वो मिक्स करने पर एफरवेसेंस आता था, उसमें बबल्स फॉर्म हो जाता था. हेलो, यस मैम. कैन यू सी द डेमो का स्क्रीन? Yes. Yes, ma'am. So now see, now they have taken the sample. Sodium carbonate, now it is being added. Now after addition of sodium carbonate, you can find the strong effervescence. Now this is the case with no effervescence. मतलब अगर अभी effervescence कौन से केस में आएगा? एसिड के केस में. एसिड के केस में. तो अभी जो केस हुआ इट वाज बेसिक. क्यों? क्योंकि उसमें एफरवेसेंस नहीं आए. नहीं. ओके. अभी अगर सब्सटेंस एसिडिक है तो उसमें एफरवेसेंस आएंगे. तो एफरवेसेंस यू कैन सी इट लाइक दिस. आई विल प्रोजेक्ट दैट.
Actually, it is difficult to project. Wait. Ma'am, it's okay, we know. Okay. See now, these are the effervescence. You can see here. दिखा effervescence? Yes, ma'am. Yes. So when we take the sample and Na2CO3 solution, if the substance is acidic, it will give you the effervescence. Okay. Yes, ma'am. So now in case of benzoic acid, since it is acidic, it will give you effervescence. So तुम लोगों को लिखना है observation, effervescence and the inference that it is acid. Okay. Yes, ma'am. Okay. Next thing, in the chart you can observe. सबके पास अगर चार्ट है, क्या बोल रही हूँ मैं, सबके पास अगर चार्ट का प्रिंट आउट है तो ही तुम लोगों को समझने वाला है, अदरवाइज तुम लोगों को नहीं समझेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस चार्ट में है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर किसी ने प्रिंट आउट नहीं लिया है चार्ट का, टेक द प्रिंट आउट्स। ओके। Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट टेस्ट अगर मैनुअल में देखोगे तो मैनुअल में है नेक्स्ट टेस्ट, इट इज बेयर्स टेस्ट, दैट इज एक्शन ऑफ KMnO4। तो KMnO4 का कलर क्या होता है? Purple. पर्पल। ओके। अगर KMnO4 का कलर पर्पल कलर, सैंपल में KMnO4 डालने के बाद अगर ये कलरलेस या फिर कोई दूसरा कलर बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ? Unsaturated compound present. यस, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ओके। तो अभी ऐसे क्यों, क्या होता है ऐसे बेयर्स टेस्ट में? ऐसा क्या होता है? KMnO4 के साथ जब टेस्ट सॉल्यूशन रिएक्ट करता है तो क्या होता है? मैम, ऑक्सीडेशन होता है। क्यों? Because of the hydrogen. KMnO4 के पास क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। यस। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या है? COH ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच है। अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है तो उसका पहला सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये क्या समझाता है कि उसमें क्या है? डबल बॉन्ड नो? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। यस, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो जब KMnO4 का रिएक्शन होता है तो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कौन सा?
जब ये रिएक्ट करता है तो KMnO4 और सैंपल तुम लोग जब लेते हो तो इट गेट्स एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रोडक्ट, ओके। और MnO2 रिलीज होता है। ऑक्सीजन तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लेता है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो होता है KMnO4 जो होता है उसमें से 2 ऑक्सीजन निकल के 2 ऑक्सीजन MnO2 में बचता है, ओके। उसके वजह से मतलब ये रिएक्शन के वजह से कलर चेंज होते हैं। मतलब जब KMnO4 ऐड होता है अक्रॉस द अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द कंपाउंड तो MnO4 जो ऑक्सीडाइज स्टेट में है वो रिड्यूस हो जाता है MnO2 को और वो पर्पल कलर छोड़ देता है और ब्राउन कलर ले लेता है, ओके। यस मैम। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, सी आई विल शेयर वन स्क्रीन टू यू। उसमें तुम लोगों को ये दिखेगा कि क्या है एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, ओके। ये देखो, क्या बोला है यहाँ पे कि KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का है, बट जब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड होता है तो MnO4 ये MnO2 को रिड्यूस हो जाता है जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। और जब डबल बॉन्ड नहीं होता तो MnO4 का रिडक्शन MnO2 को नहीं होता। उसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और अगर yes, अगर सैचुरेटेड डबल नहीं बॉन्ड, रहेगा तो नो ऑक्सीडेशन विल बी occurring. यस करेक्ट। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज नहीं होगा और MnO4 रिड्यूस नहीं होगा, जिसके वजह से KMnO4 का कलर रिटेन हो जाएगा। और अगर कंपाउंड में अनसैचुरेशन है तो ये ब्राउन कलर का बन जाएगा, मतलब पर्पल कलर से इसका कलर चेंज हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। समझा? Yes ma'am. You need not to go into the detail of the reaction। मतलब ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस उसको ऐड करके या फिर ऐसे कुछ करके तुम लोगों को जरूरत है, ओके। Yes ma'am. तो सबको समझा है क्यों ऐसे होता है? यस, Yes ma'am. एनीवन हैज एनी डाउट? मैम अगर एक्शन ऑफ KMnO4 में डीकलराइजेशन और अनसैचुरेटेड दिखा देगा कंपाउंड तो फिर ब्रोमीन वाटर क्यों करेंगे? ब्रोमीन वाटर भी सेम ही है, मतलब ये 2 टेस्ट है। तो डबल फिर चेक वो कर नहीं करते तो चलता है, क्या क्या वो टेस्ट नहीं करते तो चलता है अगर नहीं, पहले में क्या ही दिख दिया। क्यों करते हैं, समझ क्यों करते हैं पता है क्या? क्योंकि प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होते हैं ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट ये कुछ कंफर्म रिजल्ट तो नहीं बता सकते, यस और नो? यस मैम। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट वी शुड हैव मल्टीपल टेस्ट फॉर कंफर्मेशन। अभी एक ही टेस्ट से तुम लोग एकदम दावे के साथ बोल सकते हो क्या कि नहीं, हाँ ये अनसैचुरेटेड ही है? नहीं। इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है ना, अभी देखो तुम लोग जैसे कि अभी कॉपर क्लीन ग्लास रॉड का टेस्ट है एरोमेटिसिटी और एलिफेटिसिटी के लिए, ये सिग्निफिकेंट टेस्ट है। मतलब ये कंफर्म कर देता है उसका फ्लेम कि ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। वैसे ही जब तुम लोग कॉपर गॉस का टेस्ट करते हो
डेफिनेटली अगर कंपाउंड में हैलोजन है तो ग्रीन फ्लेम आएगा, ग्रीन फ्लेम नहीं है तो हैलोजन नहीं है, तो ये सीटी बोला जाता है इनको। जब तुम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो ना, तो कंफर्मेटरी टेस्ट में सेम यही टेस्ट तुम लोगों को मिलेंगे कि बाबा ये कंफर्म बोलते हैं। बट KMnO4 और ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ये डबल चेक देता है। अभी नेक्स्ट टेस्ट जो है ब्रोमीन वाटर, उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम है, उसमें सैंपल लेना है, वाटर लेना है, उसमें ब्रोमीन वाटर डालना है और शेक करना है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे KMnO4 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हुआ, वैसे ही ब्रोमीन भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है। ओके ओके मैम। और क्या होता है, उसका एंड पॉइंट क्या होता है, डीकलराइजेशन होता है कंपाउंड का। तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ब्राउन कलर का होता है। ओके अगर सब्सटेंस में अनसैचुरेशन है तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर निकल जाता है, और अगर सब्सटेंस सैचुरेटेड है तो ब्रोमीन का कलर चेंज नहीं होता। इसीलिए ये दो टेस्ट क्या बताते हैं, ये दो टेस्ट हमें ये बताते हैं कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। ओके मैम यहाँ पे रिएक्शन कौन सा है, एडिशन रिएक्शन। KMnO4 में रिएक्शन कौन सा था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो मैनुअल में तुम लोग लिख लो, एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर के नीचे लिखो एडिशन रिएक्शन, एंड एक्शन ऑफ KMnO4 के नीचे लिखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके मतलब दोनों के मैकेनिज्म अलग है। ब्रोमीन का मैकेनिज्म एडिशन रिएक्शन से जाता है और KMnO4 का मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जाता है। तो अभी बेंजोइक एसिड के केस में क्या है, डीकलराइजेशन होता है। यस क्यों, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है। ओके तो KMnO4 में ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, डीकलराइजेशन, एंड इन्फ्रेंस क्या आएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ब्रोमीन वाटर में ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, डीकलराइजेशन, और ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके यस सॉरी यस नेक्स्ट इसमें देखो एक्शन ऑफ FeCl3। अभी FeCl3 के केस में जब हम लोग जाते हैं तो FeCl3 विथ रिस्पेक्ट टू बेंजोइक एसिड तुम लोगों को लिखना है नो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, एंड इन्फ्रेंस में लिखना है डैश। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है, नो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। यस, एंड इन्फ्रेंस में क्या लिखना है, डैश। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टेस्ट है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉस। तो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉस के केस में जब हम लोग जाते हैं, इन केस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉस दो तरह के ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, मैम ग्रीन फ्लेम प्रेजेंट एंड ग्रीन फ्लेम एब्सेंट, सो हैलोजन प्रेजेंट एंड हैलोजन एब्सेंट। यस अगर ग्रीन फ्लेम है तो क्या होता है,
यस Halogen is present. यस। और अगर ग्रीन फ्लेम नहीं ऑब्जर्व होता है तो Halogen is absent. यस हैलोजन इज एब्सेंट। मैम इसमें ग्रीन फ्लेम नॉट ऑब्जर्व्ड लिखने का है। हाँ, इसमें हैलोजन है नहीं स्ट्रक्चर में, तो इसमें क्या आएगा ऑब्जर्वेशन? ग्रीन फ्लेम नॉट ऑब्जर्व्ड, हैलोजन एब्सेंट। यस करेक्ट। ग्रीन फ्लेम नहीं आया, इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हैलोजन नहीं है। ओके ओके मैम। नेक्स्ट कॉपर गॉस। ओके, तो कॉपर गॉस के केस में क्या होता है? जब तुम लोग कॉपर गॉस पे हीट करते, हाँ कॉपर गॉस का हो गया, दैट इज बेल्स्टेन्स टेस्ट। ड्राई टेस्ट ट्यूब। यस ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो ड्राई टेस्ट ट्यूब के केस में क्या होता है? It melts sublimes or gives suffocating vapors with peculiar irritating odor giving rise to coughing. यस तो अभी तुम लोगों को उल्टा जाना है, तुम लोगों को क्या करना है? इन्फ्रेंस देखना है। इन्फ्रेंस में बेंजोइक एसिड पहले ही जगह पे है, तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या है? Melt sublimes or give suffocating vapors with peculiar irritating odor giving rise to coughing. यस मतलब सफोकेटिंग ओडर होता है और उससे कफ भी मतलब कफिंग भी होता है। तो अभी यहाँ पे तुम लोग वीडियो में देख सकते हो, देखो वीडियो में कॉपर गॉस का जो पहला हम लोगों ने देखा, उसमें ये इसमें फ्लेम नहीं था, इसमें येलो कलर का ही फ्लेम था। और जब हम लोग दूसरे सैंपल पे जाते हैं तो ये कौन से केस में आएगा? ये वाला फ्लेम जिसमें ग्रीन फ्लेम नहीं है, ये बेंजोइक एसिड के लिए है। ओके, और जिसमें ग्रीन फ्लेम आता है वो ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें हैलोजन प्रेजेंट होगा। ओके, अभी ये जो लिक्विड सैंपल मैंने लिया है ना कॉपर गॉस पे, अभी जो लिक्विड सैंपल लूंगी वो लिक्विड सैंपल है क्लोरोफॉर्म का। This liquid sample which I am putting it on the copper gauze, it is chloroform। तो क्लोरोफॉर्म में क्या है? कौन सा हैलोजन है? Chlorine. ग्रीन कलर का फ्लेम दिख रहा है। Yes ma'am. So that is because of the presence of halogen। Okay, see the green colored flame, can you observe? You can zoom the screen, दिखा ग्रीन कलर का फ्लेम? Yes ma'am. यस सो ये कौन से सैंपल में होगा? ऐसा कोई सैंपल जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है। बेंजोइक एसिड में हैलोजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? बेंजोइक एसिड में ग्रीन फ्लेम नहीं ऑब्जर्व होगा। ड्राई टेस्ट ट्यूब का ऑब्जर्वेशन नोट किया? Yes ma'am, नोट किया मैम। यस अभी क्लीन ग्लास रॉड, क्लीन ग्लास रॉड के टेस्ट में क्या है? दो ऑब्जर्वेशन, सूडी फ्लेम, एक तो सूटी फ्लेम, एक तो नॉन सूडी। नॉन सूटी फ्लेम। तो सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम में डिफरेंस क्या होता है? एरोमेटिक और एलिफैटिक कंपाउंड का। यस मतलब अगर सूटी फ्लेम आता है, सी यू कैन सी इन द वीडियो विच इज गेटिंग प्लेड, जो स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को, यू कैन जूम फॉर द ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या लेना है? प्रोसीजर में क्या होता है? एक क्लीन ग्लास रॉड लेते हैं हम लोग, उस पे सैंपल लेते हैं। अभी ये ग्लास रॉड पे सैंपल है, अगर ये सैंपल एरोमेटिक है तो ये सूटी फ्लेम देगा। तो हम लोग सूटी फ्लेम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर येलो कलर का फ्लेम आता है
और ये ब्लैक कलर के वेपर्स देता है, तो ये कौन सा फ्लेम हो गया? सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम। तो अभी हीट करने के बाद तुम लोग देख सकते हो एरोमेटिक है या नहीं है बेंजोइक एसिड। देखो येलो कलर का फ्लेम दिखा सबको? यस मैम। दिस इज येलो कलर्ड फ्लेम। यू कैन जूम। बर्नर के ऊपर जो फ्लेम का कलर है, यू कैन सी येलो कलर फ्लेम। और येलो कलर फ्लेम के ऊपर ब्लैक कलर के वेपर्स भी है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शो इन वीडियो। वो मुझे दिखे बट वो वीडियो में नहीं दिखेंगे, ब्लैक कलर के वेपर्स आते हैं। सो बेंजोइक एसिड के केस में क्या होगा? सूटी फ्लेम आएगा या नहीं आएगा? आएगा मैम, क्यों आएगा? क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक है। कैसे पता चला? Because it is having double bonds present. यस करेक्ट। डबल बॉन्ड भी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। ओके, अभी नाउ यू कैन सी द सेकेंड सैंपल जो क्लोरोफॉर्म मैंने बोला था। ओके, अभी ये कौन सा सैंपल है? देखो इसमें फ्लेम तुम लोग देख सकते हो। इसमें अभी फ्लेम थोड़ा एक सेकंड के लिए आया और बाद में सिर्फ ब्लू कलर का ही फ्लेम है। कोई भी येलो कलर तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे? No मैम। नहीं। इसका मतलब ऐसे कुछ सैंपल्स जो होते हैं जिनमें येलो कलर का फ्लेम नहीं आता, उनको बोला जाता है एलिफैटिक कंपाउंड। ओके, समझा? यस मैम, समझा। यस। अभी सोडा लाइम के बाद देखो, मतलब नेक्स्ट टेस्ट है हीटिंग विद सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ हीट करने के बाद अभी कहीं पे तुम लोगों को बेंजोइक एसिड दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं मैम। नहीं। तो सोडा लाइम में सोडा लाइम, पाउडर्ड सोडा लाइम भी लेते हैं और कोरस सोडा लाइम भी लेते हैं। जब हम लोग इसमें हीट करते हैं तो नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन, देखो सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन। Evaluation of benzene, यस, इवोल्यूशन aromatic ऑफ, acid, यस, cinnamic acid. कैन बी प्रेजेंट। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो, स्मेल करने के बाद अगर बेंजीन जैसा स्मेल आता है तो व्हाट इट मींस? एरोमेटिक एसिड It इसमें is an प्रेजेंट। aromatic acid. यस, एरोमेटिक एसिड इसमें प्रेजेंट हो सकता है। समझा? Yes मैम। तो दिस वाज अबाउट द प्रिलिमिनरी टेस्टिंग ऑफ बेंजोइक एसिड। इसमें अभी कंक्लूजन क्या लिखोगे मुझे बताओ? Aromatic, unsaturated, acidic, water soluble. नहीं, कंक्लूजन के लाइन में देखो, मैनुअल में देखो, आपके मैनुअल में ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड अबव, मतलब क्या? ऊपर जो हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किए, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट एंड विथ रेफरेंस टू द हैंडबुक, मतलब कि ये चार्ट जो तुम लोग अभी देख रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू दिस द ड्रग और कंपाउंड इज, अभी बोलो क्या है? Aromatic है, एरोमेटिक, unsaturated है, अनसेचुरेटेड, acidic है, एसिडिक। acidic है, water soluble है। यस। फोर्थ पॉइंट पे क्या आएगा? वाटर सोल्यूबल। ओके, समझा इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं? और फिफ्थ पॉइंट पे चाहिए तो एक लिख लो, हैलोजन एब्सेंट। से फिफ्थ पॉइंट पे लिखो हैलोजन एब्सेंट। ओके, ओके मैम। समझा? यस मैम।
अभी आपको ये एक चीज याद रखना है कि इसमें हैलोजन एब्सेंट है। जैसे हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस पे जाते हैं, जब हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो एलिमेंटल एनालिसिस में हम लोग कौन से एलिमेंट्स डिटरमाइन करते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। यस। तो अभी तुम लोग एक चीज यहाँ पे याद रख सकते हो कि अगर हैलोजन प्रेजेंट इसमें आता है प्रिलिमिनरी में, तो तुम लोगों को एलिमेंटल करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसमें हैलोजन प्रेजेंट था, मतलब कोई ना कोई टेस्ट इसमें जरूर पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? यस मैम। यस। मैम डायरेक्टली टेस्ट फॉर हैलोजन ही करने का ना, अगर प्रेजेंट है तो दूसरा कोई टेस्ट नहीं करने का ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कल हम लोगों ने क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर देखा, उसमें हैलोजन भी यस था, मैम। उसमें नाइट्रोजन भी यस था, है कि नहीं? यस मैम। तो ऐसे हो सकता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि हैलोजन अगर प्रेजेंट आता है प्रिलिमिनरी में तो डायरेक्टली वी विल गो फॉर हैलोजन, बट इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि तुम लोगों को ये याद रखना है कि प्रिलिमिनरी में हैलोजन प्रेजेंट आया था। अगर, हाँ, तुम लोग उल्टा बोल सकते हो धैर्य, कि अगर हैलोजन एब्सेंट आता है और हम लोग नाइट्रोजन करते हैं, सल्फर करते हैं, फास्फोरस करते हैं, तो ये प्रेजेंट आता है, तो यू कैन स्किप हैलोजन का टेस्ट इन एलिमेंटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस। समझा? ओके, समझा मैम। तुम लोग स्किप कर सकते हो हैलोजन का टेस्ट। ओके? यस मैम। Yes. So this was about the preliminary testing of benzoic acid. Along with the conclusion we have finished. Okay? अभी नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फिजिकल कांस्टेंट के डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, तो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। ये सैंपल सॉलिड है तो तुम लोग मेल्टिंग पॉइंट लोगे और जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो मेल्टिंग पॉइंट तुम लोग रिपोर्ट करोगे। ओके? मैम 121 है ना बेंजोइक एसिड का ऑफिशियल यस, बुक में? इट इज 121। ओके? तो डायरेक्टली लिख दे 121। 121 के 121 मत लिखो, थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा तो भी चलेगा। ओके ठीक है मैम। अलग अलग रीडिंग लिखो, कोई 121 लिखो, कोई 122 लिखो, कोई 120 लिखो, कोई 123 लिखो, ऐसे। ओके? ठीक है मैम। अभी जब हम लोग एलिमेंटल के डिटर्मिनेशन पे जाते हैं तो एलिमेंटल डिटर्मिनेशन को बोलते हैं लेसाइन्स टेस्ट। एलिमेंटल डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? लेसगेन्स टेस्ट। यस, लेसाइन्स और लैसेग्नेस टेस्ट, दोनों में से कुछ भी तुम लोग बोल सकते हो। लैसेग्नेस और लेसाइन्स बोलो एक बार। लेसाइन्स और लेसगेन्स। यस। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि बायर्स टेस्ट था एंड बायर्स टेस्ट, उसके साथ साथ जैसे कि तुम लोगों को बेल्स्टेन्स टेस्ट था, वैसे ही मधुरा मैडम लेसाइन्स टेस्ट जो है, दैट लेसाइन्स टेस्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज द सिनोनिम ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस। ओके? ओके मैम। So this is again a one mark question which can come in the exam. Okay? तो अभी एलिमेंटल डिटर्मिनेशन का जो प्रोसीजर है, ओके, वो क्या है?
Take चार्ट है small सब piece लोगों of dry sodium. Take small piece of dry sodium metal in a fusion tube and heat it gently till the metal melts or fuses. Add equal quantity of compound to this fused metal. If the compound is a liquid, then add 2 drops of it with a capillary. Heat it gently first for few seconds, then strongly till it becomes red hot. Plunge the red hot tube in 5 ml or 1/3 of a test tube of distilled water taken in a porcelain dish, covering it immediately with an asbestos sheet. Crush the fusion tube completely. Carry out one more fusion in other similar way. Boil the extract for 5 minutes to reduce the volume to about 3 ml and filter. Perform the following test using this filter. यस तो ये सेम ऐसा का ऐसा प्रोसीजर तुम लोगों को एग्जाम में लिखना पड़ता है, बट उसको तुम लोग समझ के कैसे लोगे, दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ. अबाउट एलिमेंटल वी विल अंडरस्टैंड इट दिस वे कि एलिमेंटल में क्या होता है. सो आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू नाउ फॉर एलिमेंटल एनालिसिस. ओके